Good morning, students. In today's session, we are going to discuss about online transaction. अभी online transaction के बारे में आप सबको पता होगा because daily we people go through all this. Online transaction is done with the help of internet. It can't take place without a proper internet connection. Online transaction occur when a process of buying and selling take place through the internet. When a consumer purchases a product or a service online, she pays for it through online transaction. सी जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये चीजों से हम लोग गो थ्रू डे टू डे लाइफ में आप हमेशा ये सारी चीजें करते हो। अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑकर होता है व्हेन देयर इज अ प्रोसेस, व्हेन अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस थ्रू इंटरनेट। जब बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस जो है वो इंटरनेट के थ्रू जब होता है तो दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। व्हेन अ कंज्यूमर परचेस अ प्रोडक्ट और अ सर्विस ऑनलाइन, ही शी पे फॉर इट थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। और जब भी कोई कंज्यूमर परचेज करता है, ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करता है, तो ही और शी पे फॉर इट थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। वो उसके लिए पे भी ऑनलाइन ही करता है। नाउ प्रोसीजर इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी द प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मूव थ्रू प्री परचेज सेल, एक्चुअल परचेज सेल एंड डिलीवरी स्टेज। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। अभी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है इसमें प्री परचेस मतलब परचेस, एक्चुअल परचेस होने के पहले का जो स्टेज है वो है एक्चुअल परचेस स्टेज, मतलब एक्चुअल जब आप गुड्स परचेस करते हो। एंड द लास्ट वन इज डिलीवरी स्टेज। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन। बिफोर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वन हैज टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर बाय फिलिंग अप a registration form. Registration is the first step in online transaction. For online transaction, registration is required. Consumer need to log in a particular website to buy a particular article or service. The customer ID, email ID, name, address, other details are saved and are safe with the website. For security reason, the buyer's account and his shopping cart is an online record of what you have picked up while browsing online store. See, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने से पहले, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग से पहले, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद द ऑनलाइन वेंडर बाय फिलिंग अप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको जिस भी वेंडर से आपको प्रोडक्ट परचेस करना है, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद देम बाय फिलिंग अ फॉर्म। जो रजिस्ट्रेशन है इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। एंड बिना रजिस्ट्रेशन के this transaction is not possible. The consumer need to log in a particular website to buy a product, article or service. The customer email ID, name, address, other detail are saved and are safe with the website. आपको आपको एक आपका email ID जो रहेगा, name, address, आप जो other details आप save करते हो, it is completely safe with the website. For security reason, the buyer account and his shopping cart is an online record of what you have picked up while browsing the online store. See, security reasons के लिए buyer का जो account है and his shopping cart, मतलब आप क्या क्या चीजें परचेस कर रहे हो, is an online record. ये एक ऑनलाइन रिकॉर्ड है जो दिखाता है कि what you have picked up while browsing online stores. अब देखते वक्त आपने क्या क्या चीजों को सिलेक्ट किया है। Next is placing an order. It is second step in online transaction. When a customer likes a product or service, he put the product in the shopping cart. The shopping cart gives a record of all items selected by buyer to be purchased, the number of unit or quantity desired to be bought per item selected and the price for each item. The buyer then proceed to the payment ऑप्शन आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल द प्रोडक्ट। से ये जो सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सेकंड स्टेप है। जब कस्टमर जो है उसको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो वो, मतलब अभी कैसा है कि आपको जो भी प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आ रहा है, जो भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज करना चाह रहे हो, or if the product is according to your need, desire and according to your budget, you can pick it and put it in shopping cart. आप उसको शॉपिंग कार्ट में ड्रॉप करोगे तो शॉपिंग कार्ट गिव्स अ रिकॉर्ड टू ऑल आइटम सिलेक्टेड बाय बायर टू बी परचेज। जो शॉपिंग कार्ट है इट गिव्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल आइटम। इसमें आपने जो भी आइटम सेलेक्ट किया है, द आइटम सेलेक्टेड बाय बायर टू परचेस, हाँ जितने भी चीजें आपने सेलेक्ट की है फॉर परचेस, कितने नंबर ऑफ यूनिट और क्वांटिटी डिजायर टू बी बॉट पर आइटम सिलेक्टेड एंड द प्राइस ऑफ ईच आइटम, हर प्राइस, ये सब शॉपिंग कार्ट्स में सेव रहता है। द बायर देन प्रोसीड टू द पेमेंट ऑप्शन आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल द प्रोडक्ट। तो अभी आपने शॉपिंग कार्ट में आपको जो जो चीजें परचेस करना है आपने ड्रॉप कर दिया
एंड उसमें से आपको जो भी पसंद आया आपने उसको सेव किया है, बाकी को आपने रिमूव कर दिया है, एंड उसके बाद आता है पेमेंट प्रोसीजर। मतलब शॉपिंग कार्ट में वो सारी चीजें हैं जो आपको परचेस करनी है। तो इसके बाद द बायर देन प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। इसके बाद बायर जो है वो पेमेंट ऑप्शन की तरफ जाता है। नेक्स्ट इज पेमेंट। इट इज अ लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ये लास्ट स्टेप है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। द बायर हैज टू सिलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन। दिस पेमेंट system are secured with highly level encryption. The personal financial information is completely secure. The following are the some way in which we can make this payment. अभी ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का लास्ट स्टेप है, यहाँ पे आप पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। जो पेमेंट सिस्टम है, इट इज सिक्योर्ड, हाईली सिक्योर्ड with the high level encryption. The personal financial information is completely secure. आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल्स है, जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो कंप्लीटली यहाँ पे सिक्योर होता है। अब पेमेंट ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज कैश ऑन डिलीवरी। In this type of payment, the buyer pay when she receive the product. The payment is made at the doorstep. The customer can pay in cash or by debit or credit card. See, सबसे पहला वाला है कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे जब आपको प्रोडक्ट आप रिसीव करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, आप एट द डोर स्टेप आप पेमेंट करते हो। मतलब once you receive the delivery, after that you have to pay at your doorstep. The customer can pay. यहाँ पे आप कैश में पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। नेक्स्ट इज चेक। In this type of payment, the buyer send a check to the seller and the seller send the product after the realization of the check. अभी ये जो चेक है, यहाँ पे आप बायर को चेक सेंड करते हो। जो बायर है वो चेक सेंड करता है सेलर को, एंड वंस द चेक इज रियलाइज, जब वो चेक रियलाइज हो जाता है, मतलब जब वो चेक उसका वो एनकैश हो जाता है, उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट वहां से सेंड हो जाता है। तो इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट, द बायर सेंड अ चेक टू द सेलर एंड द सेलर सेंड द प्रोडक्ट आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ द चेक। बायर जो है वो सेलर को चेक भेजता है, एंड चेक रियलाइज होने के बाद सेलर जो है वो प्रोडक्ट सेंड करता है। नेक्स्ट इज नेट बैंकिंग ट्रांसफर। इन दिस टाइप ऑफ payment, the payment is transferred from buyer account to seller account electronically. After the payment is received by the seller dispatch the goods to buyer. It is an electronic facility of transferring funds through the internet. ये बहुत easy है। यहाँ से आप अपने अकाउंट में से आप बायर जो है वो अपने अकाउंट से सेलर के अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर रहा है, फंड ट्रांसफर कर रहा है। It is an electronic facility of transferring funds through internet. Next है credit card, debit card. The buyer make payment through debit or credit card and the amount get deducted from the customer's account. Debit card or credit card, popularly known as plastic money, these are most used for online payment. जो बायर है यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज करके अपना पेमेंट कर रहा है, और पेमेंट जो है वो पेमेंट होने के बाद कस्टमर के अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाता है। अभी जो डेबिट है एंड क्रेडिट, डेबिट कार्ड है एंड क्रेडिट कार्ड है, इट इज पॉपुलरली नोन एज प्लास्टिक मनी। इसे प्लास्टिक मनी बोला जाता है, एंड दिस आर मोस्टली यूज फॉर ऑनलाइन पेमेंट। और ये जो प्लास्टिक मनी है, ये ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। Next is digital cash. Digital cash is a form of electronic currency that exists only in cyberspace and has no real physical property, but offer the ability to use real currency in an electronic format. See, जो digital cash है, it is a form of electronic currency. ये एक electronic currency की तरह है, which exists only in cyberspace. ये सिर्फ cyberspace में exist करता है and has no real physical properties, but offer the ability to use real currency in an electronic format. For example, अभी देखो, अभी आप समझो Amazon हम ले लेते हैं, Amazon एज एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप Amazon से आप बहुत ज्यादा आपने शॉपिंग किया है, तो आपको वो लोग पॉइंट्स देते हैं। मतलब अपने रेगुलर कस्टमर्स को, लॉयल कस्टमर्स को वो लोग पॉइंट्स देते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ वो जो पॉइंट्स है वो यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। तो इसे डिजिटल कैश बोला जाता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है विच एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस, जो सिर्फ साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करता है, एंड हैज नो रियल फिजिकल प्रॉपर्टी बट ऑफर द एबिलिटी टू यूज रियल करेंसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। मतलब अभी आपके पास वो उन्होंने आपको पॉइंट्स दिया है, तो वो पॉइंट्स आप यूज करके आप क्या कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। तो वो कैश की तरह ही काम कर रहा है, बट वो कैश वो कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, वो एक डिजिटल कैश है ऑफ
is a form of electronic currency which exists only in cyberspace. Next is buying, selling process. Information play a very important role in all the transaction. Information is exchanged in both traditional as well as online business, but as compared to traditional business, internet transaction are easy. In traditional business, time is required to travel, to negotiate, to convince, and presence of both the party for face-to-face interaction is necessary. In this process, lot of time is wasted. Whereas in online transaction, required information is provided with terms and condition, and it is free for most of the problem referred above. So online transaction are easier and result oriented than traditional business. सी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इजी है कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस. जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑल द ट्रांजेक्शन. इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज इन बोथ, दोनों दोनों बाइंग मेथड में, मतलब दोनों मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में एज वेल एज दिस ऑनलाइन बाइंग प्रोसेस में, दोनों में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है. बट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, इंटरनेट ट्रांजेक्शन आर इजी. अभी ट्रेडिशनल बिजनेस में you need to travel to the place, you have to be there at the shop to get the information. आपको खुद जाना है वहां पे, negotiate करना है, then convince करना है, and वहां पे presence of both the party is necessary for face to face interaction. And वहां पे face to face interaction is necessary, मतलब both party should be present for face to face interaction. अभी वहां पे दोनों पार्टीज की फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, तो ये टाइम पे बहुत सारा, ये प्रोसेस में बहुत सारा टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है. वेयर एज इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड विद टर्म्स एंड कंडीशन एंड इट इज फ्री फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम रेफर्ड अबव. अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ये सारी चीजें आपको, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती है. इट इज फ्री फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक आपके माउस क्लिक पे आपको सारा इंफॉर्मेशन घर आपको बैठे बैठे ही मिल जाता है. नाउ यू कैन सी द चार्ट. बायर फाइंड सेलर, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, negotiation of price and delivery terms and conditions, sale, payment and delivery or online payment or delivery and post sale activity. तो यहाँ पे ये ऑनलाइन बाइंग प्रोसीजर दिया है. आप अपना फर्स्ट यू हैव टू फाइंड योर वेंडर, आप अपना वेंडर फाइंड करते हो, फिर आप गुड सेलेक्ट करते हो, फिर आप उस पर निगोशिएशन ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशन, फिर उसके बाद सेल होता है एंड यू हैव टू पे, एंड उसके बाद जो है पोस्ट सेलिंग एक्टिविटी. Our next topic is outsourcing, and this we are going to do in the next session. With this, I would like to end the session. Thank you so much.